Hi everyone, good morning. Welcome to this webinar from Signals. Happy to have you all in this webinar today. Today's host is R.A. Vishal Trehan, a SEBI registered research analyst. To give a brief about Vishal Trehan, he brings over 14 plus years of experience overall in this domain that includes the corporate experience in consulting, banking, private equity, and those areas. He's a seasoned professional with an MBA Finance from Guru Nanak Dev University, Amritsar, and he has worked in industry-leading organizations such as E&Y, Genpact, and State Bank of India. In the private equity space, since 2014, he has contributed to one of Europe's top 10 private equity players, preparing investment pitch books, valuation models, and strategies. And his journey into the stock market spans more than a decade. And he started with cash-based long-term stock investing, and he then progressed on to derivative trading and is now leveraging algo trading, cutting-edge technology that eliminates emotional biases and enhances decision making through the data-driven strategies. And he's also the founder and CEO of Origo Quantrade, a fintech firm specializing in algo trading solutions. And he empowers retail investors to adapt to advanced trading methodologies backed by back-tested profitable strategies. And we are very proud to have him as a mentor in our Signals platform, where he brings his deep expertise in technical and fundamental analysis to guide the subscribers or the clients across swing, positional, and long-term investment strategies. Especially his hands-on experience with algo trading and quantitative approaches that offers clients access to innovative solutions that optimize their trading outcomes and while minimizing the risks. His data-centric approach that ensures that the investment advice provided on Signals is well researched and backed by empirical evidence. So really happy to have Vishal as our facilitator today. My name is Sharath. I am part of the Signals team and the co-host for today's session. So, Vishalji, welcome to this session, and really happy to have you here today. Thanks, Sharath. Thanks for giving me the introduction. So before we start the session, I just wanted to ask all the users whether we are comfortable with Hindi or it has to be an English language, so that हम उसी तरीके से इस पूरे डे को conduct करें, whatever they are more comfortable. So if somebody can run a poll to know whether preferred language is Hindi or English, that will be helpful. Sure. Okay. By the way, one instruction, whenever you're asking a question, either you can put it up in the chat box, or you can actually raise your hand and we can unmute you and you can ask the questions in person as well. So the Vishal, the response is that both are fine, and I'm assuming that the participants are comfortable both with Hindi and English. So probably you can go with a mix of Makes both, sense. so that I Understood. think that way they'll be all comfortable. And feel free in case there are certain things that you don't understand. Please ping here or raise your hand. We'll unmute you and you'll get a chance to even speak as well. That way, we'll address your questions. Yeah, maybe to start with, Vishal, it may be a good idea to start with latest update in the market. One thing that we have seen last week, the late last week, is Yes. the RBI announcing the repo rate. That definitely is a quite a significant reduction in the repo rate, which definitely have a lot of influence or impact. Probably you Right. can start the session with your commentary on how do you see the impact of this repo rate cut onto the market. So let me present you a couple of pointers जो update हमारे हैं available from the RBI announcements, I guess, and then we will bring on to rationals and see how the market reacted. वहाँ पे हमें समझ आ जाएगा कि हाँ whether it was a positive thing or how the market has reacted or perceived it. So let me share my screen right now. So ये हमारा कल लास्ट वीक का अपडेट है. So right now आपके सामने जो चार्ट है वो निफ्टी का चार्ट है. Basically I try to read the Nifty on a 45 minutes chart because ज़्यादा लेंथी नहीं होता और ज़्यादा डिलेड भी नहीं होता और ज़्यादा क्विक फास्ट भी नहीं होता. So over the last couple of days, or even I can say over the most of the second half of the month, Nifty जो थी एक range bound trade में चल रही थी. So it was like above, it was having a resistance at 25,000, and on the lower side we are having a support of 24,460.
सो दिस वाज द होल द मोमेंट जहां पे पूरा का पूरा लास्ट 2 वीक्स हमने स्पेंड किया है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग एवेन्यूज. नाउ लेट्स कम टू द डिसीजन, बिकॉज हमारे पास जो फ्राइडे को अनाउंसमेंट आया उसके बाद क्या हुआ. सो दिस इज हाउ इट रिएक्टेड. दिस इज द लास्ट डे. सो ऑन अ 45 मिनट कैंडल यू कैन सी दैट वी स्टार्टेड ऑन अ नेगेटिव नोट, बट सडनली जब हमारे पास अनाउंसमेंट्स आने शुरू हुए तो मार्केट रिएक्टेड वेरी पॉजिटिवली. So this is the candle, which is a huge candle which was formed on the Nifty chart, led by the banking sector index. So and followed by the reality and metals. So यहाँ पे हम जान सकते हैं कि जो भी announcements RBI ने करी है वो basically market ने उसको receive किया है as a positive on the note. Most of the sectors has risen और stocks prices जो है उन्होंने gain किया है, especially in reality and finance space. So we can see that on a reality sec we actually closed 4% up, but on the another side most are into 1.5% gain range. Even bank nifty was up 1.4%. Now first let's us understand what was the announcement और वो क्यों किए गए. Then we will be able to correlate how reality is the most favored one which gets into the picture when this kind of announcements come into. So हमें पता है कि ये मीटिंग्स जो थी वो 4 जून से 6 जून के बीच में हुई और हमारे पास जो अनाउंसमेंट आया था वो 6 जून को आया था. उसमें से मेन जो पॉइंटर्स हैं अनाउंसमेंट के, उसमें से सबसे पहला पॉइंटर था आरबीआई ने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट कट किया है, जिसका मतलब है करंट रेपो रेट जो होगा अब 5.5% हो जाएगा. नाउ ये इंपॉर्टेंट है ये भी देखना कि ये रेपो रेट कट जो है ऑलरेडी 3 स्टेंसेस में आ चुके हैं. पहले 25 बेसिस पॉइंट था, फिर 25 आया, बट इस बार इवन व्हेन market was expecting a 25 basis point cut, but RBI went into going into a 50 basis point. Now यही एक मेजर इम्पैक्ट है कि जहां पे आपको देखने को मिलता है कि बैंक निफ्टी और अदर इंडाइसेस ने पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट ने उसको पॉजिटिवली एम्ब्रेस किया है और वो अनएक्सपेक्टेड था क्योंकि 25 से 55 बेसिस पॉइंट, इसलिए आपको सडन राइज भी देखने को मिला. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज जो मॉनेटरी कमेटी है उसने अपना पॉलिसी स्टांस जो है वो अकोमोडेटिव से करके न्यूट्रल कर दिया है. नाउ जिसका मतलब है कि हम देख सकते हैं कि आप मान के चलिए अब आने वाले समय में और रेट कट्स नहीं आएंगे सो फ्रीक्वेंटली, बिकॉज जब न्यूट्रल स्टैंस पे आ जाएंगे तो इसका मतलब है मोर एंड मोर डेटा डिपेंडेंट डिसीजंस विल बी टेकन केयर ऑफ. जो पिछली बार हमने डिस्कशन में किया था कि हाँ आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जब आई थी तो इट वाज ए क्लियर कट व्यू कि वहां पे आरबीआई को लग रहा था कि इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, जिसकी वजह से हमें पुश करना चाहिए ग्रोथ को. तो ग्रोथ को पुश करने के लिए उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट कट दिया था और उसी स्टैंस को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने इस बार 50 बेसिस पॉइंट का कट दिया. बट दे आल्सो नाउ सेइंग दैट इट्स अ न्यूट्रल स्टैंस. तो अभी एक्सपेक्ट करना चाहिए कि दिस विल होल्ड ट्रू फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम और नेक्स्ट रेट कट जो होगा वो इतनी आसानी से अनाउंस नहीं किया जाए. देन अनदर थिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑन द पार्ट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो को भी 100 बेसिस पॉइंट कट कर दिया गया. ये लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने के लिए सिस्टम में किया जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मेजर क्योंकि इट्स अ सिंपल मेजर जहां पे ये कहा जाता है कि बैंक्स को कुछ पार्ट ऑफ द मनी विच इज कम्स इनटू एज अ डिपॉजिट उनको अपने कैश रिजर्व्स में रखना होता है. सो दैट बिकम्स लाइक डेड मनी फॉर द बैंक्स. तो बैंक उसको यूज नहीं कर पाते लेंडिंग पर्पसेस के लिए. बट जब आपकी इस रिक्वायरमेंट को कम कर दिया गया है इसका मतलब है बैंक्स के पास एक्स्ट्रा पैसा आया है जो फाइनली वो मार्केट में ऑफलोड कर सकेंगे इन टर्म्स ऑफ लोन्स. सो जिससे मार्केट की लिक्विडिटी और बढ़ेगी. ना ये डिसीजंस क्यों हो रहे हैं उसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन हमें इकोनॉमिक आउटलुक में दिखती है कि जीडीपी प्रोजेक्शंस जो है हम मेंटेन कर रहे हैं कि हम आने वाला साल जो है 6.5% ग्रोथ पे क्लोज करेंगे. पहले जो था लास्ट टाइम ये नंबर 6.75 था और तभी आरबीआई ने इसको कट करके 6.5 कर दिया था. बट नाउ इस बार कोई री रिविजन नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि आरबीआई का एक्सपेक्टेशन है कि हम इतना तो एटलीस्ट इस साल मैच करेंगे. नाउ इन्फ्लेशन की बात करें, पहले 4% इन्फ्लेशन था. लेटेस्ट नंबर्स के अकॉर्डिंगली ये इन्फ्लेशन 3.7% है. तो आरबीआई एक बैंड के अंडर ऑपरेट कर रहा है 2 to 4% जो सरकार ने उनको दिया हुआ था. नाउ दे आर कंफर्टेबल विद द इन्फ्लेशन नंबर्स. पिछली बार वो लेटर स्लाइडर अप थे 4% से, बट as their expectation was to come down, they gave a 25 basis point cut. Current number is saying it is 3.7, so it is under their bracket of 4% lesser. So this why I guess they have gotten for 50 point basis cut ताकि वो इकोनॉमिक बूस्ट जो है ज्यादा मिल सके और उसको वो इकोनॉमी में पुश कर सके. तो रैशनल्स फॉर बेसिकली डिसीजंस
जो हम ये 3 रीजंस हुए उसमें हमने इकोनॉमिक सिनेरियो को जज करने के बाद दिया, तो बेसिक रैशनल्स बनते हैं. So RBI is trying to achieve inflation which is under 4%, तो वो उनके पास ऑलरेडी अचीव हो रहा है, बट एट द सेम टाइम दे आर ट्राइंग टू पुश द ग्रोथ मोमेंटम, क्योंकि हम 6.5% जीडीपी पे ग्रोथ कर रहे हैं एंड वी नीड टू मूव इनटू द हायर ट्रेजेक्टरी. और वो तभी पॉसिबल होगा अगर मार्केट में लिक्विडिटी होगी, कॉर्पोरेट्स जो हैं वो लोअर रेट पे उसको पैसा जो है लैंड आउट कर सकेंगे और उसे इस्तेमाल कर सकेंगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए. देन सेकंड, इन्फ्लेशन जो है वो ऑलरेडी हमारे ग्रोथ टारगेट के बीच में है, तो वी आर कंफर्टेबल विद दैट. सो ऑन द अनदर साइड दैट मींस वी नीड टू जस्टिफाई द डिमांड और बूस्ट द डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट्स. सो ये हमारे रीजंस थे जिसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे. और अब हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा रियलिटी सेक्टर क्यों इम्पैक्ट करता है. ना आपको सिंपली से ये समझने की जरूरत है कि मोस्ट जो फास्ट इम्पैक्ट वाली चीज होती है वो होता है होम लोन, जो रियलिटी सेक्टर को इम्पैक्ट करता है. जैसे ही होम लोन के रेट्स जो हैं वो बढ़ते हैं और कम होते हैं, वो डायरेक्टली डिमांड को इफेक्ट करते हैं, क्योंकि नई परचेजिंग उसके साथ आनी शुरू होती है. आज की डेट में आफ्टर दिस कट इट इज एक्सपेक्टेड दैट होम लोन्स जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.5% के करीब आ जाएगा. सो हम समझ सकते हैं कि 7.5% इज ए लिक्विडेटिव रेट. जहां पे इंडियंस 8-9% पे भी घर लेते हैं, वहां पे 7.5% इज अ वेरी पॉजिटिव मूव. और जो एग्जिस्टिंग लोन होल्डर्स हैं उनको भी फायदा होता है, तो दे कैन लुक फॉर द सेकंड इन्वेस्टमेंट्स एज वेल. तो दैट्स व्हाई रियलिटी सेक्टर ने उसको सबसे पहले रिएक्ट किया है और यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है. और ये एक्सपेक्टेड है कि ये लीड भी करेगा आने वाले कुछ हफ्तों में इस ग्रोथ को. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिशियरीज आर बैंकिंग, विच वी नो, क्योंकि उनके पास लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और वो लेंड करेंगे तो उनके पास इनकम अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी. सो दैट इज पार्ट पार्सल ऑफ इट. नाउ हाउ इट इम्पैक्ट्स ऑन अ कंज्यूमर सेक्टर. यू कैन सी द कंज्यूमर सेक्टर ने उसको पॉजिटिव दिया है, बट इवन लेसर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द रियलिटी. एंड कंज्यूमर सेक्टर में हम जब बात करें डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट करने की, तो वहां पे बेसिकली बात होती है जो हमारे एफएमसीजी गुड्स हैं उनको खरीदने की बात होती है. और वहां पे ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो लेट पहुंचता है. कि आप समझिए कि यहाँ पे बैंक सीधे सीधे लेंड नहीं करते. आप अगर टीवी खरीदने जाते हैं तो आपके पास एनबीएफसी लेंड करती हैं, और वहां पे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो डायरेक्टली रेपो रेट से लिंक नहीं होते, बट इन केस ऑफ बैंक्स वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं. तो होम लोन डायरेक्ट इम्पैक्ट लेता है, कंज्यूमर लोन्स लिटिल लेटर इफेक्ट लेते हैं. तो दिस इज हाउ द होल मार्केट हैव रिएक्टेड टू दिस रीसेंट आरबीआई पॉलिसी. आई गेस जो हमने अभी देखा था निफ्टी, तो लीडिंग इंडेक्स हमारा मेरे अंदाजे से अब इट्स पॉसिबल, if we don't have bad news coming in the next week or so, we can see the Nifty might surpass the 25,116 levels, और वहां से हम इस जर्नी को आगे जाने की जाता हुआ देख सकते हैं. So this is my view on the recent updates on from the market. Now I guess. Sure. Yeah, thanks, Vishal. I think that's a good summary, and it gives quite a good insight into the kind of impact that would have. We already have questions started pouring in, and anyway, to the audience, please start sending your questions, and we'll take it up one by one. One relevant question that you already have received, Vishal, is on the rate cut by around the rate cut. So on the one side, you have rate cut by RBI. And on the other side, we have this thing happening between Trump and Musk in USA. How do you think this also would impact India? Is that any impact you see because of the things that are happening in the US between Trump and Elon Musk? Yes, Trump or Elon Musk case mein it's more of a personal rivalry. They are actually now fighting on an ego rather than on a political front or the policy fronts. So they have their views. Trump is actually gave a task to the Musk for cutting their expenditures, which they done. But again, the politics plays its own way. They have a budget which they need to spend, so just to take care of their political needs. So that's a different scenario altogether. मैं नहीं मानता हूँ कि उसका मेजर इम्पैक्ट वर्ल्ड इकोनॉमी में होगा. सो द सिमिलर लॉजिक गोज टू इंडियन इकोनॉमी एज वेल, क्योंकि वो पॉलिसी डिसीजंस नहीं है. अगर वो पॉलिसी डिसीजंस होते यानी कि किसी कंट्री को स्पेसिफिकली करते टारगेट कर रहे होते, तो वो चीजें अलग थी. जैसे पहले हमारे पास आए थे कि सैंक्शंस लगाए गए थे, फिर ड्यूटीज लगाई गई थी. तो दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, बट दिस फाइट इज अ लिटिल डिफरेंट इन नेचर.
So my understanding says हम एक ऑलरेडी रेंज बाउंड में more than 2 weeks spend कर चुके हैं most of the May month. So this is market was waiting for a catalyst. Bottom out तो already हो चुका था. So this is a catalyst which should push the market up rather than down. Okay. The next question is, sir, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए इक्विटी में एंड इंट्राडे में on a capital of 7 lakh intraday level per and monthly or annually? I don't say that there is an exact number जो हर एक को fit होता हो, because return on expected is a little wild question. In terms, somebody is taking a huge risk, they will be expecting a huge return. So risk and reward is always a balanced approach. अगर आप किसी ऐसी स्ट्रेटजीज में ढूंढने की कोशिश करेंगे जहां पे आपके लो ड्रॉडाउन हो, तो एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि आपका ईयरली रिटर्न 20-25% के बीच में ही रहेगा. And counting out on an intraday basis, it is certainly not feasible. So I'm sorry, but it will just depend on how much you can put at a risk. If you can take a risk of 2%, and then the returns will vary. If you want to take only a risk of 5% or 1%, then again it's vary. So it's difficult to decide on which number it will fit into the bracket. On a yearly basis, yes, we can always expect. हमारी long term history यही कहती है. Nifty has given around 40% gains over a CAGR basis of last 2 decades. So this is expected out of it. Mid caps में हमेशा इस returns में थोड़े से upsides होते हैं. So you can go for like 18%. And over a long term basis, अगर आप proper trading भी कर रहे हैं, एक strategies, जैसे मैं बिल्कुल प्रॉपरली अब एल्गो ट्रेडिंग में शिफ्ट हूँ. एल्गो ट्रेडिंग का मतलब है कि आप एक डिफाइंड रिस्क और डिफाइंड रिटर्न एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं. तो एट दैट सिनेरियो हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, दे आर टारगेटिंग मैक्स ऑफ लाइक 2.5% गेन्स ऑन अ डे. और वो भी तब आता है कि अगर मार्केट बिल्कुल साइडवेज हो जाती है ऑन अ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज. बट एट द सेम टाइम वी आर टेकिंग अ रिस्क ऑफ अराउंड 1.8 to 2%. So this is a whole different number which needs to adjust, and I guess this is a personal decision for whoever is deploying the capital. I think one connected extended question from the same person is that इक्विटी में स्टॉप लॉस बुक नहीं कर पाते हैं तो इक्विटी में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस का कोई अल्टरनेटिव नहीं है. ओनली थिंग यू कैन डू इज यू मूव आउट ऑफ द स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स अगर हमें कुछ ज्यादा ही इशू है तो. So what we can do is better focus on investing in the companies which are part of the Nifty 50 index or the Nifty Next 50 index. इसका मतलब है कि आप इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके पास जो कुशन ऑफ कंफर्ट है कि वो एक लेवल तक अगर नीचे जाएंगे तो वो वापस ऊपर भी आ जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं. और हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंजेस ने उनको आइडेंटिफाई किया है कुछ पर्पसेस के लिए. So they have already made the criteria. उनका stringent criteria होता है before the part of the index. तो अगर इंडेक्स का पार्ट है, जैसे हम देख सकते हैं कि निफ्टी में हमारा जो ड्रॉ डाउन था अभी लेटेस्टली, वो अभी भी कहीं भी 15% के करीब ही था. तो आप हिस्टोरिकली भी उठा के देखेंगे तो वो इतना ही रहता है. तो इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड द स्टॉक्स जहाँ पे आप स्टॉप लॉस बुक नहीं करना चाहते, आपको पहली चीज बनानी होगी, आपका इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन लंबा रखना होगा, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में फ्लक्चुएशंस मैनेज नहीं की जा सकती, लॉन्ग पीरियड में की जा सकती हैं. देन सेकेंड थिंग इज आप वही कंपनी चूज करिए जो निफ्टी में परफॉर्मिंग हो, राइट. दे हैव टू बी इक्वलेंट परफॉर्मर एज फार एज द इंडेक्स इज कंसर्न. जो अंडर परफॉर्मिंग कंपनीज हैं आप उनको छोड़ देंगे तब भी आपका ये पर्पस जो है सॉल्व हो सकता है. एंड रेस्ट इज ऑलवेज यू कैन गो फॉर SIPs. वहां पे आपको ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपका अगर हॉरिजॉन पीरियड ऑफ इज लाइक 10 to 12 years ऑफ इन्वेस्टिंग, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग योर SIP ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. जैसे ही मार्केट नीचे आती है आपके SIP में यूनिट जो है एक्स्ट्रा ऐड होने शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही वो रिकवर करती है तो इट गेट्स बैलेंस्ड आउट एंड यू आर ऑन ए better curve as far as ROI is concerned. Okay, Vishal, next one is specifically on a stock, your comment. So can you guide on M&M Finance, Mahindra and Mahindra? Okay, let me see. So what kind we can see? Finance, you said, right? Yeah, M&M Finance. Yeah. So let me share my screen so we can review together how it looks on the chart first. So my screen visible? Yes, we can see that. So first of all, जब भी हमें कोई एनालिसिस करना हो तो I guess ideal way to do is that we look on the long term charts, then we actually turn out to be on a shorter time frame. अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में मैच करती हैं then your investments make sense, otherwise not. So महिंद्रा का अगर हम वीकली चार्ट देखें
So we can already see that it has an upward trend. But here for the year 23 and year 24, currently the stock has topped out, और हम इसके levels को भी अगर आसानी से mark कर सकते हैं. So it's around 330 rupees, which has been a high for the company. Now, most of the thing is the company is going sideways because यहाँ वाले gains के लिए already एक आपको hold मिल रहा है. So my understanding says this is what we call as an accumulation period, right? So मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का शेयर नीचे नहीं जा रहा है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ था, दे आर आइदर होल्डिंग इट और more and more new people are actually joining the investment bandwagon. So this is the long term view. हम अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो ये हमारे पास स्क्रीनर्स पे रेडली अवेलेबल होते हैं. So we can see that Mahindra and Mahindra financials have posted highest profits for 2025. So that's why they are having the highest EPS. So by that simple correlation logic, it is expected that Mahindra and Mahindra should be trading at the highest price range. So in the next 12 months, we can expect that it will move higher towards 300 and pass the 330 levels to create a new high. So that is the analysis which the numbers are suggesting as well as the chart is suggesting. Now, if we go on a smaller time frame like day, so we can see that these are the two big candles जहाँ पे हम देख सकते हैं ये ऑलरेडी बॉटम फॉर्मेशन शो कर रही हैं क्योंकि ये प्राइस तो नीचे गया बट वो सस्टेन नहीं किया. तो इससे भी हम अपने एक्यूमुलेशन को जस्टिफाई करते हैं कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है और जैसे ही प्राइस नीचे जाता है तो पीपल आर बाइंग इट. बट इमीडिएटली आपको एक रेजिस्टेंस लेवल जो मिलेगा वो 300 पे मिलेगा. बट as it crosses 300 levels, it will go for the 330. And my expectation is that over the next 12 months, it should create a new lifetime. Thank you, Vishal, for that detailed analysis. So next question is whether defense sector still good for investing, given that it has already had a good runway and now there is no escalation threat? I guess question में ही एक answer है that they already had a good runway. The problem with these things is रिटेल के पास तब जाके वो अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई होती हैं जब वो ऑलरेडी न्यूज में आ चुकी होती है और न्यूज तब बनती है जब वहां पे ऑलरेडी कुछ हो चुका हो और एक्चुअली कुछ बड़ा हो चुका हो. तो डिफेंस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव्स दे चुके हैं. मेरा मानना है वो सेम रेट पे उसको कंटिन्यू करेंगे. आंसर इज नो. देन सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज क्या सब कंपनियों में ये असर होगा? अगेन द आंसर इज नो. तो आपको अगर मूव्स देखने को मिलेंगी तो वो कंपनी स्पेसिफिक में मिलेंगी, हर एक में नहीं मिलेंगी. तो अगर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो एडवांस टेक्नोलॉजीज बनाएंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट कॉन्फ्लिक्ट हमारा हुआ उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि वॉरफेयर जो है वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर ऑन द ग्राउंड नहीं रह गया कि जहाँ पे गन्स यूज होंगी और टैंक्स यूज होंगे. द थिंग हैज ऑलरेडी चेंज. वहां पे मोस्ट ऑफ द थिंग इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी. तो जो भी डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने की आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको रिटर्न जनरेट करने का मौका मिलेगा. बट अगेन आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होना चाहिए. द थिंग्स लाइक जैसे मजदा और डॉक हो गया या और शिप बिल्डिंग कंपनीज है जिन्होंने 100% का रिटर्न जनरेट किया ओवर द लास्ट 2 years. द सिमिलर रिटर्न्स विल नॉट बी फिजिबल टू रेप्लिकेट इन द कमिंग डेज. आपने इस चीज को नोट पता नहीं किया कि नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पिछली रैली में देखने को जरूरी है वो ये थी कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक जो राइज कर रहे थे वो ऑर्डर बुक अनाउंसमेंट पे राइज कर रहे थे. प्लीज अंडरस्टैंड दैट ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट होने में सालों साल लगता है. ऑर्डर एक बार 20,000 करोड़ का आ गया इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी अगले साल में 20,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाली है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी लाइक 5 साल का ऑर्डर बुक है और वो 20,000 का रेवेन्यू 4,000 करके रियलाइज हुआ. तो कंपनीज के फाइनेंशियल्स को अपने शेयर प्राइस के साथ मैच अप करने के लिए टाइम चाहिए होता है. माय अंडरस्टैंडिंग इज मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स विल स्टे वेयर दे आर unless until they justify their revenues going forward. They should not go down. अगर वहां पे आपको डिच मिलेगा कि गाइडेंस कुछ और थी और कंपनीज रिपोर्ट नहीं कर पाई उतने नंबर्स में, देन आपको करेक्शंस भी देखने को मिलेंगे. बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यस डिफेंस इज ए गुड सेक्टर बिकॉज इंडिया का ओवरऑल डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ रहा है. तो इस नजरिए से आप देखेंगे तो उनके लिए एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है वो एक्सपैंड हो रही है. जो पहले सिर्फ 1,000 करोड़ कुछ थी अब 10, 20, 40, 50,000 करोड़ तक जा रही है क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है. तो उस नजरिए से हमारे पास अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी. बट मैं कहना चाहूंगा वो स्पेसिफिक टू स्टॉक्स होंगी rather than going for an overall sector. Okay.
So another question, what is the optimum risk to reward ratio that one should go with? I guess यहाँ पे optimum answer is not possible, जो मैं पहले भी बोल रहा था. Again, it will depend upon many factors. कुछ को मैं quantify कर देता हूँ. जैसे कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट में हो तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कुछ और होता है. आप डेली ट्रेडिंग में हो, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कुछ और होता है. डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स में आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कुछ और होता है. सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो आपका अलग है. आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो अलग है. तो स्विंग ट्रेडिंग की सबसे पहले हम बात करें तो माय अंडरस्टैंडिंग से आपको 6 या 7% से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है. यानी कि आपको ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं यहाँ पे आपका रिटर्न जो है 15% से प्लस जनरेट हो सकता हो विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ. इट्स योर डिपेंडेंट. You want to go for 15 days or 1 month or 2 months. I will choose 3 months as a small period because 15% return on a 3-month period is very good return. You can generate alpha out of this. So वहाँ पे आपको ऐसे स्टॉक्स बिल्कुल नहीं चूज करने हैं जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जो है 6-7% से ज्यादा का हो रहा है. Then long term horizon, it is a totally different game altogether. Long term horizon में even you can go for a stop loss which is around 20% because आप स्टॉक के प्राइसेस को एडजस्ट करने की टाइम दे रहे हो. आप हर एक चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर रहे. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप बेसिकली फाइनेंशियल्स के ऊपर और बिजनेस के ऊपर बेट ले रहे हो रादर देन स्टॉक प्राइसेस के ऊपर. तो स्टॉक प्राइसेस जो है उसको ऑटोमेटिकली फ्लक्चुएट होने का टाइम देना पड़ता है. तो वहां पे स्टॉप लॉस का लेवल थोड़ा बढ़ता है और देयर अगेन योर रिटर्न एक्सपेक्टेशन विल मल्टीफोल्ड बिकॉज अगर आप 20% का रिटर्न ले रहे हो और आप क्या चाह रहे हो कि आप उसको साल तक होल्ड करो या 2 साल तक होल्ड करो, योर रिटर्न expectation can lie from anywhere between 30% to 50% and 60% as well. So that's a different altogether. And when we go for a systematic trading, which is basically on these days option trading, it's a different ball altogether because आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपके पास डेली ट्रेडिंग में आपके पास ओवरऑल कैपिटल पे लगाया जाता है रादर देन इंडिविजुअल ऑप्शंस जो आप सेलेक्ट करते हो ट्रेडिंग के लिए. तो एट एंड ऑफ द डे आप नहीं चाहोगे कहीं पे भी आप 2% से ज्यादा अपनी कैपिटल एक दिन में खो दो बिकॉज दैट विल स्टार्ट इम्पैक्टिंग your ability to take new trades. So this is all a different answer for all the different segments. I hope I've clarified. Yeah, sure. So next question, Vishal, is why is option selling preferred over option buying? Although option selling has unlimited downside and it also has a higher premium. So इसका तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दूंगा सर. सब पहले तो लोगों को ये मिथ है समझने वाली कि इट्स अनलिमिटेड रिस्क क्योंकि थियोरेटिकली इट्स यस इट इज अनलिमिटेड रिस्क. बट आप और मैं अभी आंसर करके हटे हैं कि रिस्क और रिवॉर्ड कैसे जस्टिफाई होता है. तो इन एन ऑप्शन सेलिंग आप अनलिमिटेड रिस्क के लिए नहीं जाते. देयर इज ऑलवेज ए स्टॉप लॉस इन प्लेस. चाहे वो स्टॉप लॉस उस कॉन्ट्रैक्ट पे है, इंस्ट्रूमेंट पे है, चाहे आपकी ओवरऑल कैपिटल पे है. तो आप ऐसा कोई भी ट्रेड नहीं लोगे जो आपकी कैपिटल को 2% से ज्यादा खराब कर सके एक ही ट्रेड में. दैट्स फॉर एन इंट्राडे बेसिस. और सिमिलरली अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप ऐसा कोई ट्रेड नहीं लोगे जो आपकी कैपिटल को 5 to 6% से ज्यादा सिंगल ट्रेड में इम्पैक्ट कर सकता हो. सो देयर इज ऑलवेज अ रिस्क व्हिच इज डिफाइंड. द प्रॉब्लम इज जब होप जो है वो डेटा के ऊपर हावी हो जाती है. तो वी हैव सोल्ड एन ऑप्शंस और हम वेट कर रहे हैं कि हाँ नहीं एक्सपायरी डे तक वो हमारे प्राइसेस से नीचे आ जाए. द प्रॉब्लम स्टार्ट इज अराइजिंग दैट हमने अभी किसी ने बोला they can't book a stop loss. My answer for that is then if you can't book a stop loss there is no other way to protect your capital in the stock market. Stop loss का कोई alternative नहीं है. This is the most important holy grail in the market. आपके पास strategy इतनी important नहीं है जितना stop loss important है. आप अगर अपनी कैपिटल को रिस्क डिफाइन करके चलोगे तभी आप ट्रेडिंग कर पाओगे और लॉन्ग टर्म में आप उसी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो. अदरवाइज अगर आप ऐसे कहोगे कि हमारे स्टॉप लॉस बुक नहीं किया जा सकता और हम स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि हाँ नहीं स्टॉप लॉस इज इन आवर माइंड. नो, आंसर इज नॉट. इट शुड नॉट बी इन योर माइंड, इट शुड बी इन द सिस्टम. आपको नहीं पता कि कब स्पाइक आ जाएगा और कैसे आपका स्टॉप लॉस बिहेव करेगा. आपको मौका भी नहीं मिलेगा बाद में उसको बुक करने का. So stop loss should always be in the system, especially when you are doing an intraday trading. You can already put a stop loss order. That is not an issue. और आजकल तो अगर आप पोजिशनल भी कर रहे हैं तो there are something called GTD orders. So you can always define that stop loss has to be the system. Now, second part of the question is why option selling. Now, why option selling में सबसे important answer जो है आपको समझना पड़ेगा कि
एक प्रीमियम को डिसाइड करने के लिए कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं. सो देयर इज नॉट अ सिंगल वेरिएबल व्हिच सेज दैट ओके अगर आज 24,000 पे ऊपर निफ्टी चल रहा है और 24,200 के प्रीमियम 200 की स्ट्राइक का वैल्यू जो है वो 400 ही रहेगा जितनी देर तक वो एक्सपायरी डेट खत्म नहीं होता. ऐसा नहीं होता. देयर आर 5 वेरिएबल्स व्हिच आर इन्वॉल्व. we have delta, we have gamma, we have vega, we have rho, we have theta. So यहाँ पे 5-6 वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं प्राइस को डिसाइड करने के लिए. पर इन सब में ऊपर जो हावी होता है वो है टाइम डिके थीटा. क्योंकि ऑप्शंस प्राइसेस आर लाइक द आइस व्हिच विल मेल्ट. जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट हुआ है उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी. अगर इंडेक्स में अंडरलाइन में कोई मूवमेंट नहीं आएगा तो प्राइसेस ऑफ द प्रीमियम स्टार्ट मेल्टिंग. So they have to go to a zero अगर वो out of the money contract है. It's a pure truth. Nobody can deny it. So इसी चीज का फायदा उठाने के लिए ऑप्शन सेलिंग लोग करते हैं क्योंकि अगर मार्केट में कुछ नहीं भी हो रहा है तो भी आपको पैसा बनेगा. तो मैं इस चीज को प्रोबेबिलिटी में काउंट करता हूँ. बेसिकली 3 आउटकम्स होते हैं किसी भी मार्केट सिनेरियो में आप ट्रेड लेते हो. आइदर इंडेक्स ऊपर जाएगा, सेकंड इंडेक्स साइडवेज रहेगा, थर्ड इंडेक्स डाउन जाएगा. The probability attached to all of them is 0.3. So 1/3 is the probability, so it's 0.33. But option selling में आपके winning के chances 0.66 है. क्यों? क्योंकि आप sideways की probability और आपके trend की probability add कर रहे हो. तो आपके lose करने के chances जो हैं वो 0.33 हैं और आपके gain करने के chances जो हैं 0.66 हैं. Now apply this on a risk reward of 1:1. यानी कि आप 1 रुपया कमाने के लिए 1 रुपया रिस्क ले रहे हो. तो अगर आपने 10 ट्रेड किए और उन 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड यानी आपका सिर्फ 50% भी हिट रेट आ जाता है तो 5 ट्रेड्स वेंट इनटू लॉस बट 5 ट्रेड्स वेंट इनटू गेन. अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 है तो आप पैसा नहीं गवा रहे हो. बट अगर यही टिल्ट होके सिचुएशन आपकी 60% विनिंग हो जाए और 40% लॉसेस हो जाए तो आप 4 रुपए गवा रहे हो, 6 रुपए कमा रहे हो. इवन देन यू आर इन अ गेन. तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपको पैसा बनाने की वो ज्यादा बन जाती है अगर आप ऑप्शन सेलिंग में हो तो. नाउ मूव इनटू द सिनेरियो जहां पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो 1:1 से शिफ्ट होकर 1.25, 1.3 और 1.5 तक चला जाएगा. सो दैट्स वेयर द गेम चेंजेस इनटू अ वेल्थ मेकिंग जर्नी. अगर आप 50% भी करेक्ट हो और अगर आपने एक लॉस 1 रुपये का किया है और आप गेन 1.5 पर ले जाओगे तो आप 50-50 सिनेरियो में भी पैसा बनाना शुरू कर देते हो क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में है. That's why the institutionals are more preferable on the option selling side, and that's how this whole option selling scenario has picked up over the period of time. Okay. I got another question. I think it's quite relevant to what you already answered. Maybe you can just probably add some more on this. The question is, sir, I lost 85 lakhs in derivatives. So when I evaluated my P&L, my winning were 2 crores and my losses were 2.8 crores. So how do I really manage my risk to rewards? I know I'm making money, but I also know when I'm losing big. So इसके लिए मेरा काउंटर क्वेश्चन यही होगा. आपकी अगर स्ट्रैटेजी है देन व्हाट इज योर रिस्क टू रिवॉर्ड. अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:1 भी है और अगर आप 50% में भी 50% विनिंग में भी आ रहे हो तो आपका लॉस नहीं होना चाहिए. ओनली द थिंग व्हिच विल बी यू पेइंग इज ब्रोकरेज एंड अदर चार्जेस. तो आपको यही समझना होगा कि आपका रिस्क जो है पर ट्रेड आपके रिवॉर्ड से कम होना चाहिए. आपको सिर्फ इतनी सी चीज को मूव करना है. देन सेकेंड इज आर यू टेकिंग द स्टॉप लॉसेस जो आपने डिफाइन किए हैं. समटाइम्स होता क्या है, लोग कह देते हैं अच्छा हम 20% स्टॉप लॉस लेंगे बट दे आर वॉचिंग द मार्केट एंड दे मिस इट. देन वो स्लिपेज कॉस्ट करता है, आप उसको 25 और 30% पे जाके देखते हैं. देन आपने अपनी रूल बुक को ब्रेक कर दिया. सो एनीबडी हु इज ट्रेडिंग विद द मनी, आई जस्ट हैव ओनली वन आंसर टू देम. आपको अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी जो है उसको डिफाइन करना पड़ेगा. देन आपको एक ही स्ट्रैटेजी अगर आप सीख लेते हैं और उसको रिपीट कर पाते हैं परफेक्टली, you should be able to turn profitable. Another again personalized question. So, sir, I'm a doctor. Whether FNO or intraday is suggested for me, but I want good returns, which in long term is not possible because since last year there is no growth in portfolio. I paid 1 lakh rupees to a research advisory. Derivatives किसी के लिए सही है या नहीं, I guess ये personalized question है. So I'm nobody to answer on that, which is it suits you or not.
बट यस, डेरिवेटिव एक हाई रिस्क और हाई रिटर्न है, दैट्स व्हाई लोग इसके तरफ आगे ज्यादा बढ़ रहे हैं. बट then the second part of the question, you said good return. I would request you to please define that number, because मैं एल्गो ट्रेडिंग करता हूँ और एल्गो स्ट्रेटजीज लिस्टेड अवेलेबल हैं, तो मेरे पास लोग आते हैं. वन ऑफ द पर्सन सेड टू मी, सर कैन वी मेक अराउंड 20,000 sorry 30,000 by deploying a capital of 4 lakh. I did the math for them. So you are asking for a 7% return on a month. That means you are asking for a 84% return on a year. My answer is sorry sir, I can't do it for you. So please understand, जब भी कोई इस चीज की डिस्कशन होती है, आई वेंट टू डू कि हाँ ये रिटर्न स्ट्रेटजीज कैसे परफॉर्म करेंगी, तो मैं सामने वाली पार्टी से यही पूछता हूँ कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है. एक्सपेक्टेशन प्लेज अ ह्यूज रोल. अगर आपका एक्सपेक्टेशन 50% है और स्ट्रेटजी 40% भी रिटर्न देगी, तब भी आपको अच्छी नहीं लगेगी. यू विल थिंक ओके डू समथिंग मोर. बट अगर आपका रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि 25% रिटर्न भी आ जाए, 25% रिटर्न का मतलब है आप 3 साल में पैसा डबल कर लेते हो. बहुत सारे लोग इस पीछे की मैथ्स को नहीं समझते. उनको लगता है कि 25% का नंबर कम है. 25% का नंबर आपके पैसे को 3 सालों में डबल कर सकता है. दैट्स हाउ द मनी मेकिंग कॉन्सेप्ट वर्क्स. और अगर आपका रिटर्न, मान लीजिए आपने 25% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है साल का, और 30% भी आता है, तब भी आपको अच्छा लगेगा कि दैट यू हैव अचीव्ड व्हाट यू वांटेड फॉर द. एंड देन अगेन आपके ड्रॉ डाउन्स भी उसी तरीके से मैनेज होते हैं. तो इट्स बिकम्स एन इंपॉर्टेंट सिनेरियो. ऑन एन F&O साइड, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स योर पर्सनल टेक, बट आई वुड सजेस्ट, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना है, तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है. आइदर यू हायर समबडी टू डू इट, or you automate your trading system. There is no if and but in between them, because derivatives में आप ट्रेड छोटे समय के लिए लेते हैं, तो आपको उस चीज को वॉच आउट करना है कि हाँ ये ट्रेड ओके था, आपकी सारी कंडीशंस को मीट करने के बाद हुआ. डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग तो पॉसिबल ही नहीं है. आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग में ही जाना पड़ेगा. आपको पता होना चाहिए कि आपका एंट्री लेवल क्या है, आपका टारगेट क्या है और आपका स्टॉप लॉस क्या है. इट हैज टू बी बुक्ड. एवरीथिंग हैज टू बी इन द सिस्टम. आइदर ऑटोमेट द थिंग, और आई वुड सजेस्ट, अगर आप ये चीजें नहीं कर सकते तो बेटर है यू शुड गो फॉर एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट ओनली, जहां पे आप अपने प्रोफेशन पे फोकस करें और आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रो होने का टाइम दें. नाउ यहाँ पे आंसर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप स्मॉल कैप में जाएंगे, देन यू शुड बी एक्सेप्टिंग द लार्ज ड्रॉडाउन्स एज वेल एज द हायर गेन्स. बट आपको रिस्क अवर सिनेरियो में ट्रेड करना है, देन यू हैव ओनली वन पॉसिबल सिनेरियो. आप सिर्फ निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की कंपनियों में ही इन्वेस्ट कीजिए. दीज आर द टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया, जहां पे आपको पैसा लगाएंगे तो आप इकोनॉमी के साथ ग्रो कर सकेंगे. यू कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट रिटर्न ऑफ 14 to 15% पैसिवली. Another interesting question. I'm a fresh graduate. I'm not getting a job anywhere. Can I start full-time career in stock market? That's the first part. Second part is for long term, for someone in early 20s with the limited capital. How would you recommend entering into the market? Yes, the person who has asked this question is very genuine, and he has asked the question at the right time. I guess I would have asked the question same to myself. And my answer to that question is yes, you can be part of this career, but you need to understand the pros and cons of this career. First of all, this career comes with lots of hard efforts. क्योंकि लोग कई सोचते हैं कि यार स्टॉक पिकिंग में कौन सी कोई तीर मारने वाली चीज होती है, तो that's not the answer. You need to have, because आप एक थीसिस बिल्ड करते हो कि हाँ हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन 4 रीजंस की वजह से कर रहे हैं. देन यू हैव टू ट्रैक द रीजंस कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है, कंटिन्यू करती है, अदरवाइज हम उसको एग्जिट करेंगे. तो इट्स अ हार्ड वर्किंग करियर. देन आपको स्टार्ट कैसे करना है, बिकॉज आपके पास कैपिटल नहीं है. द ओनली वे टू कैपिटल इज फर्स्ट अर्न सम इनकम. तो माय सजेशन वुड बी कि आप NISM का एग्जाम क्लियर कीजिए. देन यू कैन वर्क विद द कॉर्पोरेट RS, जो ऑलरेडी रिसर्च एनालिस्ट है, कॉर्पोरेट फर्म्स है, दे हायर द पीपल. So you can start something like 30,000 or 35,000 at that level. As you work with them, आपको इंडस्ट्री का एक्सपोजर बढ़ेगा, आपकी नेटवर्किंग बढ़ेगी. That's how you will be able to learn over the next 2 years कि स्टॉक पिकिंग कैसे होती है और इन्वेस्टमेंट कैसे होती है. You will be able to understand the practical experience of risk reward कैसे सेट होता है, एक्सपेक्टेशंस कैसे मैनेज की जाती हैं, ड्रॉडाउन्स कैसे मैनेज किए जाते हैं. So when you learn over the next 2 years, आपके पास कुछ पैसा भी इकट्ठा हो जाएगा सेविंग्स के साथ साथ, और आपके पास एक नॉलेज बेस भी होगा. अगर आप NISM सर्टिफाइड है, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट गो फॉर सेबी लाइसेंसिंग एज वेल, और आप इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं अगर आपकी अपनी कैपिटल है. Yeah, I think we got another relevant question.
Sir, I want to be an RA like you, but as a woman, I feel people will not trust me as majority of investors are male. Anyhow, how can I change people's perspective? Because you yourself being an RA, what do you suggest for a woman who wants to become an RA? So my answer to this is, I guess आपको नहीं perception change करना हो ना मुझे change करना है. ये ऑलरेडी डेटा ड्रिवन है. अगर आप सेबी की रिपोर्ट देखें जहां पे उन्होंने कहा कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग में पैसा लूज करते हैं, अगर आप उसके फर्दर ब्रेकडाउन में जाएंगे ना तो आपको देखने को मिलेगा उन्होंने फर्दर ब्रेकडाउन किया है कि किस एज ग्रुप में प्रॉब्लम ज्यादा है. तो छोटी एज ग्रुप के लोगों के पास प्रॉब्लम ज्यादा है क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी है. वैसे ही जैसे 60+ वाले सीनियर्स लोग हैं उनके केसेस में 45% आर प्रॉफिटेबल. देन उसमें एक और फर्दर ब्रेकअप दिया गया है that women are more profitable than the men. और उसके पीछे एक ही कारण बताया गया है, इन्वेस्टिंग में पेशेंस की जरूरत ज्यादा होती है. तो women are always a good for picking the stocks because they know they can hold it for a longer period of time. They are more calm in nature. So ये चीज आपको by nature दी गई है. So you need not to think that why it's a man only board. That's a different thing. Women who are trying to be established in the field, they have generated better returns even on a portfolio basis. You can do the research and get your answers for this one. Yeah, just to add on, there are quite a few women RAs as well on Signals platform, and that I'm sure it will be definitely a point of inspiration. And you can check out Signals mentors profile page. We have few RAs who are women. So I don't think there is any lack of trust or lack of confidence on women. There are definitely people who are trusting them. So we can check out the mentor profiles on Signals platform. So anyway, thanks for that question. It's a very good point that you brought up. Another question, Vishal. Okay, just a time check. We have about 10 minutes left. A couple of more questions, and then if you have any other questions, probably the last chance for you to ask the questions. Vishal, the next one is, sir, I'm holding 1.67 lakhs quantity of idea. Is it really going to close? Should I exit? That will be a difficult call for me to do because idea is something which is actually limping on the support from the government. So my counter question would be you, आपने क्या थीसिस बनाया था जब आपने वो पोजीशन एंटर करी थी? अगर आपका वो थीसिस आज भी होल्ड करता है देन यू शुड होल्ड द स्टॉक, अदरवाइज यू शुड एक्सिट. ओवरऑल बेसिस पे आप देखेंगे, यस, गवर्नमेंट चाहती है कि वो सस्टेन करे. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन कंपनी अभी तक बंद नहीं हुई है. अदरवाइज कंपनी बंद हो चुकी होती क्योंकि उनके पास डेट बहुत ज्यादा है और उसको सर्विस नहीं कर रहे. कंपनी पैसा भी नहीं रेज कर पा रही है और कहीं और रिसोर्सेज. सो दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर द कंपनी. बट गवर्नमेंट सपोर्ट है. तो अगर ये सिंपल एक रीजन था कि आपने इसको इन्वेस्ट किया था, देन आई गेस यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट. बट अगर ये रीजन नहीं है और आपने जिस भी रीजन से इसको इन्वेस्ट किया, आपको उन्हीं रीजंस को रीवैल्यूएट करना चाहिए आज के सिनेरियो में. दैट विल गिव यू अ परफेक्ट आंसर रादर देन मी. Another question, can you share your views on guidance on the Dr. Reddy Labs? Let's see. Let me pull out the chart and then read what is available in financials. So sharing my screen now. So ये हमारे पास डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट है एनएसई पे. So first of all, I am actually looking at the chart from a weekly perspective. So weekly perspective के हिसाब से हम चले तो स्टॉक मार्च से लेके अराउंड अगस्त 24 तक एक पॉजिटिव बुल रन में. Then the similar scenario has happened that यहाँ पे rather than going sideways, the stock has taken a support in downways, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग हुई है. बट एट द एंड ऑफ द टाइम अगेन दिस कैंडल जो आ रही मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आजकल फॉर्म आउट हुई है, दिस शोज दैट स्टॉक हैज बॉटम्ड आउट अराउंड 1100 लेवल्स. तो देयर इज अ हाई चांस द स्टॉक जो है इस लेवल्स को ब्रेक नहीं करेगा. एट द सेम टाइम द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन द हाई रेंजेस. सो आप 52 वीक के हाई रेंजेस पे चल रहे हैं. Now let me add to the another dimension. Let's pull out a trend line. तो ये ट्रेंड लाइन है. तो ये मेरे एक स्ट्रेटजी है जिसमें मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ. तो इट्स बेसिकली गिव मी द आंसर ऑन कि कौन से स्टॉक जो हैं वो ट्रेंडिंग है. तो ट्रेंडिंग स्टॉक्स में अगर आपका ट्रेंड लाइन जो 20% से कम का एंगल बनाता है और प्राइस उस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देती है, देन इसका मतलब है कि स्टॉक में मोमेंटम पिक हो रहा है और वो वापस अपने हाईज की तरफ जा रहा है.
और यही सिमिलर सिचुएशन इस स्टॉक में भी हमें दिखने को मिल रही है। हमारी ट्रेंड लाइन जो है वो सिर्फ 5% एंगल पे है। तो मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज मुझे जो एस्टिमेशन है वो अपना 1420 का जो हाई है वो आने वाले 6 मंथ में ब्रेक करेगा। लेट्स गो टू द फाइनेंशियल्स। माय अंडरस्टैंडिंग says financials should automatically back it up. So हम देखें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यस, सो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखें तो they have the best of their years. They have highest EPS of 67 in their last 10-year history. So financially भी company sound है और as far as stock price भी sound है. So both are suggesting that the company should create a new 52-week high or its lifetime high in the next 6 months. Vishal, with the current trend of COVID again resurfacing in some parts of the country and in the world, so how do you really see this impacting Dr. Reddy's or in general the pharma segment? मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट ना एक ही न्यूज के लिए दो बार रिएक्ट नहीं करता। कोविड के 2019 में जब हुआ था रिएक्शन, वो फर्स्ट टाइम था, किसी को नहीं पता था कि इसका क्या करना है। बट आज की डेट में हमें पता है कि हमें कोविड वैसे सिचुएशंस में क्या करना है। तो पहली तो ये चीज, अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पैक्ट आएगा, आंसर इज नो। देन ऑन द सेकेंड पार्ट, द नंबर ऑफ केसेस हैज बीन वाइडली डिफरेंट। अगर बढ़ता भी है तो फार्मा के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट देगा, आंसर इज अगेन नो। तो आई एम नॉट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट मेरे को देखता हुआ किसी भी फार्मा स्टॉक के लिए कोविड का नहीं नजर आ रहा। आपको आई गेस इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन गेट बैक टू मी और द सिग्नल्स टीम फॉर दैट। Yeah, I think that's great to hear, Vishal. I actually posted the link to access the subscription as well as the promo code. Please make use of this opportunity and don't miss this opportunity. And make use of the best handpicked the bouquet of the stocks as part of this model portfolio. And thanks for that offer, Vishal. So yeah, we really look forward to your subscriptions and any help needed. We are here from Signals team to help you get onboarded with that subscription. Maybe we'll just wind up with one last question that we have from the audience, Vishal. Top 3 stock picks for this quarter for investing. Do you have any suggestions? That's a very difficult topic to answer on, but as we are on this platform, so I guess I can help you with a couple of names for sure. So with the start of the year, actually I started analyzing the companies which make more sense to invest. I have one little bias जो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि I try to invest in newly listed companies rather than जो बहुत सालों से listed है. The problem with the already listed companies में क्या होता है कि कभी कभार स्टॉक प्राइस एक रेंज में चला जाता है जहां पे आपके पास कुछ करने के लिए नहीं होता, तो देन इट बिकम्स ए डिफिकल्ट चैलेंज। और मेरा मानना है कि जब कंपनीज अपनी नई जर्नी स्टार्ट कर रही होती हैं तब उनके पास कोई भी ओवरहैंग नहीं होता इन्वेस्टर्स में। तो आप स्टॉक मार्केट में आए हैं, आपका प्राइस लिस्टेड हुआ है, अगर इन्वेस्टर्स उसको पिकअप करना शुरू कर देंगे देन आप उसमें अच्छा पैसा बनाना शुरू कर देंगे। बस उसको इस चीज में एड अप करने की जरूरत है कि उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। अगर आप इन दो चीजों को समझ लेंगे, प्राइस और बिजनेस मॉडल, इन दोनों चीजों को क्लब कर देंगे तो आपके पास एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होनी शुरू हो जाएंगी। तो मैं 2 स्टॉक्स का नाम लेता हूं अभी आपके सामने। हमारे पास पिछले 6 महीनों में 2-3 कंपनियां लिस्ट हुई हैं, उसमें से आई विल सजेस्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस। नाउ ये कंपनी करती क्या है बेसिकली, हमारे मेट्रोज में बहुत सारे रियल एस्टेट के प्रॉब्लम्स हैं, तो ऑफिसेज को स्पेसेस की जरूरत होती है। कहाँ पहला मॉडल ये कहता है कि हमें लीज आउट कर लेना चाहिए, तो आप पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को लीज आउट करते थे। बट नाउ वी आर गोइंग ऑन ए फ्लेक्सी कैप मॉडल्स, तो जहाँ पे कुछ सीट्स रिजर्व होती है। तो ये कंपनी इसी सेक्टर में स्पेस ऑफर करती है कि फ्लेक्सिबल रेंटल मॉडल जो है वो लोगों को देती है। इस स्पेस में 4-5 कंपनियां लिस्टेड है, बट ऑफिस स्पेस सोल्यूशन में एक स्पेशल चीज ये है कि वो लैंडलॉर्ड से लीज आउट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल का मतलब है आपको अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट अपनी जेब से नहीं डालना पड़ता। दे आर टाइंग अप विद द लैंडलॉर्ड्स और लैंडलॉर्ड्स प्रॉपर्टीज को अपग्रेड कर देते हैं। तो दे आर डूइंग इज ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस जो है टेनेंट्स को लेके आते हैं, तो बेसिकली कॉर्पोरेट्स को वो
लेके आते हैं साथ में। तो इस मॉडल में आपका अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर आप कंपनी के पीछे कुछ 1-2 प्रेजेंटेशंस देखेंगे जहां पे आपको ये समझ आएगा कि मॉडल कैसे काम कर रहा है, तो एसेट लाइट बिजनेस मॉडल कंपनी के लिए एक एज जनरेट कर रहा है कंपेयर टू इट्स पेयर। सो यहाँ पे 2 रीजन हो गए इन्वेस्टमेंट के। एक कंपनी ऐसे सेक्टर में है जो आने वाले समय में बढ़ेगा, क्योंकि मेरा मानना है कि जो पुराना मॉडल है जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट आती है, कंपनी उस मॉडल में नहीं जाना चाहती, दे वांट टू सेव द कॉस्ट, और ये मॉडल प्रेफरेबल है और हम ऑलरेडी इस चीज को होते हुए देख रहे हैं। देन दूसरा, इस कंपनी के मार्जिन दूसरों के पेयर के कंपैरेटिवली इंप्रूव होंगे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया एसेट लाइट बिजनेस मॉडल पे काम चल रहा है और वो उसी तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। So these are the 2 investment reasons why I will suggest is office space solutions could be an investment which you can pick. Then I will give you a second name, Blue Jet Healthcare. Blue Jet Healthcare एक सेकंड कंपनी है जो मैं सजेस्ट करता हूँ। ये बेसिकली फार्मास्यूटिकल कंपनी स्पेस में आप इसको डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बनाती है। ये प्रोडक्ट वो बनाती है जो एक सोल्यूशन होता है जो एमआरआई और सीटी स्कैन के टाइम पे इंप्रूव करने इमेजेस को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट अगेन। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं हमारी इंडिया में जो प्री डायग्नोस्टिक स्पेस है वो बढ़ती जा रही है। हम कोई भी डॉक्टर ऐसे ही प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिख देता। फर्स्ट दे एक्चुअली वांट्स टू गो फॉर डायग्नोसिस, चाहे वो लालपात लैब्स में टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, या फिर हायर लेवल पे आप चले जाएं तो वो एमआरआई और सीटी स्कैन हो। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो हैं वो इंडिया में पैन इंडिया ग्रो कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द चेन्स ग्रो कर रही हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल चेन को देख लीजिए, दे आर टर्निंग इनटू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स एंड इनटू मेनी सिटीज। तो वो जो ग्रोथ है कपल्ड विद डायग्नोस्टिक का इस्तेमाल जो है बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज देने के लिए हो रहा है, वहां पे आपका सीटी और एमआरआई का जो लेवल है, द नंबर ऑफ प्रोसेस विच आर कंडक्टेड तो एमआरआई एंड सीटी वो ईयर ऑन ईयर बढ़ते जा रहे हैं। और इस चीज का बेनिफिट जो कंपनी जो है ब्लू जेट हेल्थ केयर उठा रही है। तो आने वाले समय में जैसे जैसे ये सेक्टर एक्सपेंड होगा ये कंपनी जो है उसका फायदा उठाएगी। नाउ ये कोई कमोडिटाइज प्रोडक्ट भी नहीं है कि बहुत सारी कंपनियां बेच रही हैं, तो इसकी वजह से भी इस कंपनी को फायदा होगा, क्योंकि कम कंपनीज हैं तो कॉम्पिटिटर्स भी कम है। तो कॉम्पिटिटर कम होने की वजह से आपके पास मार्जिन जो है मेंटेन करने के चांसेस बढ़ते हैं। तो these are the 2-3 reasons I would suggest Blue Jet Healthcare could be also a good investment opportunity. Now caveat is you asked for only a quarter. Now I can't say it will make a money in a quarter. Please understand that dynamics बहुत अलग अलग होते हैं। तो you should, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं ना, तो आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन 12 मंथ्स होना चाहिए, ना कि 3 मंथ्स। 3 मंथ्स इज जस्ट अ स्विंग ट्रेडिंग। वहां पे टेक्निकल ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फंडामेंटल्स कम होते हैं। So my suggestion is if you are going for 12 plus months, use these opportunities to invest in India's growth story. Nice. I think thank you for that input, Vishal. I think with that we come to the end of the session. We have answered all the questions, and the kind of questions and the answers definitely was quite of good quality. And then I'm sure this has been quite helpful for all the listeners. And thank you so much for your time, Vishal. Thank you. And thanks to all the audience listeners for joining in. This has been really good on a Sunday morning. Coming up in this number and asking these kind of questions means a lot to us. And Signals will be there to help you through your invest and trading journey. Consider subscribing to Signals and taking the services from various registered analysts that we have on board. And we are also available to any help through our helpline and support numbers. Thank you so much, and we look forward to your participation in all upcoming webinars as well. And have a nice weekend. Thank you. Bye-bye.